آج ہم پاک کلام میں سے جو تلاوت خداوند نے مجھے بخشی ہے وہ ہے پطرس کا دوسرا عام خط، پہلا باب اور اس کی 10 آیت۔ سیکنڈ پیٹرس چیپٹر 1 ورس 10۔ پاک کلام میں یوں مرکوم ہے، پس ہے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور اگر ہم یہاں لکھا ہے صرف بھائیوں، لیکن اگر ہم انگلش بائبل میں دیکھیں تو لکھا ہے مائی بردر اینڈ سسٹرس بی ویری شیور دیٹ گاڈ ہیز اپوائنٹڈ یو۔ اور یہ جو ہے ہم صرف یہ آدمیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ہم سب بہنوں کے لیے بھی خداوند یہاں چاہتا ہے، اور بہنوں کی یہ جماعت ہے تو اس لیے ہم اسی پر خداوند کی جتنی بھی ہم تمجید کریں کم ہے۔ ابھی ریسنٹ ہم نے وہ ایک پروگرام سیلیبریٹ کیا، خدا کی برگزیدہ بیٹیوں نے اس جماعت میں 1 سال مکمل کیا۔ سارا جلال میرے مقدس باپ کے نام کو ملے، اور اس پورے سال میں جو کلام کی خوبصورت باتیں سیکھی، بہت برکت پائی۔ میں نے ذاتی طور پہ بہت برکت پائی۔ ایک سادہ سی مثال دوں گی، ایک پتھر کو اگر ہم اس کو ہر روز اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہے تو سال بعد اس کی شکل چینج ہوگی، اور یہی ہم سب کا حال ہے۔ ہم نے بہت برکت پائی، بہت برکت پائی۔ خداوند کی ہم جتنی بھی تمجید کریں کم ہے، لیکن جب اب میں پاک کلام کو آج جب میں چاہ رہی تھی کہ خداوند سے کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے، ہم کس بات کے لیے کیا سیکھیں ہم، تو یہ جو ہے دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 10 آیت، تو یہاں تو لکھا ہے اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ اب خداوند ہم سے یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سال کا پہلا دن، دوسرے سال کا پہلا دن ہے، اور یہ پاک کلام ہے، اور پاک روح ہمیں یقیناً گائیڈ کرتا رہے گا کہ ہم نے کیا زیادہ کوشش کرنی ہے۔ میں جب یہ کلام جب مجھے ملا تو میں نے خداوند سے کہا، خداوند یہ تیری پاک مرضی میں شامل ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے، جو تیری پاک مرضی میں شامل ہے وہ تو ہمیں پاک روح ہمیں گائیڈ کرتے جانا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب اس پہ غور کر رہی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں 4 قسم کی روحیں ہیں، اور جب 4 کا لفظ ہے تو وہ ڈسپلن کا ہے، لفظ وہ ہے نظم و ضبط کا۔ تو ہم نے اس بات پر غور کرنا، تو خداوند ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنے کی طاقت و توفیق دے۔ ہم سب سے پہلے اپنی روحانی زندگی پر غور کریں۔ تو ابھی میں جیسے بات کر رہی تھی کہ ہم نے ابھی یہ سارا پروگرام اٹینڈ کیا ہے، اور خداوند نے ہمیں کیسے کیسے سکھایا ہے۔ آپ جو موجود تھے جانتے ہو کہ روح کا کتنا مسا تھا اس دن، کیسی خداوند کی حضوری تھی اس جگہ پہ جہاں خدا کی یہ برگزیدہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ساری بہنیں بہت خوبصورت ہیں کیونکہ ہمارا بنانے والا بڑا خوبصورت ہے، اور جو خوبصورت روح بسا ہوا تھا تو ایسے لگ رہا تھا ہم آج کسی اور دنیا میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف وقتی طور پہ وہاں ہی تھے اس طرح، یا بعد میں بھی ہماری زندگی ویسی ہے؟ ہم نے اپنی روحانی زندگی پہ ضرور غور کرنا ہے کہ یہ پاک کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ اب یہ خداوند ہمیں ساتھ ساتھ سکھاتا رہے گا۔ اب روحیں جو میں نے کہا ہے 4 قسم کی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ روح جو ہم میں بسا ہوا ہے، زندگی ہے تو وہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ خداوند کا پاک روح ہے، جو خداوند کے پاک روح میں سے ہم نے وہ چیزیں سیکھنی ہیں، اور وہ ہے گلتیوں کا خط، پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام 5 باب اس کی 22 اور 23 آیت۔ یہ میں صرف پڑھوں گی، وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، لیکن میں نے
उस दिन जब हम इकट्ठे बैठे थे तो मैं इस चीज से अंदाजा लगाती हूँ कि ये सब चीजें हम बखूबी समझ सकते हैं, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है, और ऐसे कामों की कोई शरीयत नहीं। ये चीजें हमें पाक रूह सिखाता है और ये चीजें हमने सीखनी है। तीसरी रूह जो है वो बद, इसके लिए भी हम सारा कुछ जानते हैं। अब चौथी रूह जो है, जो खुदावंद ने मेरे ज़हन में डाला, वो है एंटी क्राइस्ट। और वो जरूरी नहीं है कि हम में से कोई मुखालिफ मसीह हो या उठ खड़ा हो कि जी कोई खुदावंद के खिलाफ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं और वो हम में से ही हैं जो लेकिन उसके लिए जो हवाला मैंने लिया है वो है इमसाल की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 16 ता 19 आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है। नफरत का लफ्ज यहाँ लिखा हुआ, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। अब कराहियत जो है नफरत से भी थोड़ा आगे हो गया। अब इसके लिए क्या है? ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रोपों, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और भाइयों में नफाक डालता है। ये सारी चीजें हमारे समझने की हैं और हम इन्हें बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हम सब में पसंद है। तो मेरी बहनों, जब साल का दूसरा, इसी जमायत को दूसरा साल शुरू हुआ है, तो हमने इन सारी चीजों पर बड़ा गौर करना है कि खुदावंद इस साल हमसे क्या चाहता है। कौन सी ऐसी चीजें हम अपनी काट छांट खुद करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारे में कमी है ताकि हम उसे पूरा करें, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कई दफा वो कमियां हमें खुद नहीं होती, हमें बहुत सी ऐसी रूहें हैं इस दुनिया में, बहुत सी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, रूहें हम, वो मैंने जैसे कहा कि वो रूह जो हम में बसा हुआ है, तो वो जो है जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे होते हो तो वो नहीं चाहते कि आप और ज्यादा ग्रो करो। बहुत सी रुकावटें बनती हैं, हम सब जानते हैं। और ये चीजें जो है, इनको हमने अब जो नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हुआ है, तो हम अभी से, आज साल का पहला, क्योंकि सैटरडे हमने तकरीबन उसी मीटिंग पे ही हम बात करते रहे, संडे खुदावंद की तमजीद, हम अपने अपने चर्च में थे, और आज हमारा ये दूसरे साल का पहला दिन शुरू हुआ है और हमने ये चीजों पे गौर करना है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। आखिर वो उसने जो हमें ये पैगाम दिया है कि अपनी बरगुज़ीदगी पर गौर करो और अपनी बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, तो हमने इस कोशिश को बढ़ाना है। और हम खुदा के जितने शुक्रगुजार हैं कम है, कम शुक्रगुजारी है शायद हमें, जितने हमने मौजज़ात देखे, जितनी हमने गवाहियां सुनी। क्या ये खुदावंद की लाख लाख का शुक्र हो कि हम ये ऑयल किसी को भी देते हैं, खुद भी लगाते हैं, तो कई बीमार शिफा पा जाते हैं। बहुत से मौजज़ात हमने देखे। और उस दिन मेरी बहनों ने जो 2 अफिया रतन और बाजी शहनाज नादर ने जो पैगाम दिया था, तो जो रोगन बलसान पे था वो भी मसीह का लहू है, और जो दूसरा था कि जैसे बनी इसराइल बच गए, वो तो बर्रे और बछड़ों का था जो उन्होंने अपने दरवाजों पर लगाया, और इब्लीस की कोई चाल नहीं चल सकी, मौत का फरिश्ता उन्हें छू नहीं सका। और तो जो खुदावंद की तमजीद हो, हम जो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हमें ये छोटी छोटी चीजें, ये रुकावटें, ये लोमड़ियां जो हमारे बीच में आ जाती हैं, जो पाकिस्तान को खराब करती हैं, हमें खुदावंद इस पे फजल बख्शे कि हम इन पर ज्यादा इस साल और फोकस करें
ताकि कोई कड़वी जड़, जैसे एलिजबेथ हमेशा कहती है, कोई फूट ना जाए। और खुदावन से पाक रूह का दुगना मसा मांगे कि खुदावन अपने पाक रूह को और भी हमारी जिंदगियों में नाजल करके हम रूह की हदायत से वो सारे काम करें जो तू चाहता है। और जो इससे आगे जो इसका रिजल्ट मुझे मिला जब इन सारी बातों पे मैं गौर कर रही थी, तो इसी दूसरे पत्रस की पहले बाब की 11वीं आयत हम जरूर पढ़ें। और उस पे क्या लिखा हुआ है, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। ये पाक कलाम आज खुदावन ने दिया और हमने सीखा, और अब अमल करना हमारा काम है कि खुदावन हमसे क्या चाह रहा है और हमने किस तरह इस पर अमल करना है, किस तरह इसको हमने अपनी जिंदगी में लेना है। खुदावन की हम हर रोज अपनी कांट छांट करें, छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाएं, ताकि हम अपनी बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करें। और वो जो इतना खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है, इज्जत के साथ उसकी बादशाही में। और दुनिया में क्या इज्जत ही तो सारे ढूंढते हैं, लेकिन ये तो हमें पाक कलाम दे रहा है कि अगर तुम इन चीजों को करते जाओगे तो बड़ी इज्जत के साथ उसकी बादशाही में दाखिल होगे। और अब मेरा ईमान है ये ग्रुप अब बादलों में इकट्ठा होने वाला है। ये हमने हमदो सताइश जमीन पे बैठ के बड़ी खूबसूरती से की, हमने मिलकर आसमानी शहर में भी दाखिल होकर उसकी सबने मिलकर प्रस्तिश करनी है। और खुदावंद हमें ऐसा करने की ताकत और तौफीक दे। वहाँ कोई मुल्क, कोई शहर, कोई जगह नहीं रहेगी, बल्कि एक ही जगह होगी जहाँ हम अपने ईमान को मजबूत करके उसकी बरगुजीदगी में और कोशिश करके बढ़ते जाएं। और खुदावंद हमें ऐसा करने की कोशिश, हिम्मत, ताकत दे, ताकि सचमुच हम और ज्यादा अपनी कोशिश से उस इज्जत को हासिल करें जो वो हमारे खुदावंद, जो पाक कलाम में लिखा है, जो हमें देने को है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।